we struggle so much with what is called art of answer writing. As we are all set to write upcoming main examination, it's the beginning of realizing where do we go wrong in spite of putting in all the efforts, why the marks is not coming. Now, to prove the point, I have got few answers written by students in the last year test and the model answer that I provide, so that I can make you understand the difference. Before I begin, do remember, improvement begins only when you realize your limitations and mistakes. So be very open to it and you'll start improving. So from geomorphology, a question that I asked, what is triple junction? Also I outline its type. It was a 10 marker question. So it was asking us to write some 150 words, which is equal to approximate 2 pages of your answer. The evaluated sheet in front of me, I'll be overwriting. So in this particular paper, the aspirant has written in a box triple junction, point where 3 lithospheric plate collide with each other. कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, वो spread out भी हो सकता है. तो हमने जो सबसे पहला इनको कमेंट दिया वो डेफिनेशन फर्स्ट, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं, that there are certain questions where you need to start with definition linked to plate boundary, जो इन्होंने नहीं किया, and then it creates ridges. This is okay, but the example that comes up as albatross ridge and challenger ridge goes wrong, and the comment written here, this cannot be triple junction because दोनों ही केस किसके हैं, the two plate boundaries. ट्रेंचेस की स्पेलिंग गलत कर दी, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्रूशियल सा पॉइंट है जो हम रियलाइज नहीं करते एंड वी गेट द डिडक्शन ऑफ मार्क्स. तो आप देखो ये आंसर राइटिंग का अप्रोच जो है, इट इज सर्टनली नॉट गिविंग लॉजिक टू क्रिएट आंसर, एंड वो सारे कंटेंट इज कंप्लीटली मेस्ड अप. यू स्टार्टेड विद ट्रिपल जंक्शन बट लैंडेड एडिंग एग्जांपल्स ऑफ टू बाउंड्रीज. Complete absence of what is required in this answer. So allocogens is completely missing out, and then the types which is being asked is missing out in this answer. तो आपको आप देख रहे हो 10 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिले. तो ये हुआ मेरा पहला केस. अब दूसरा केस देखते हैं. ये भी स्टूडेंट ने आंसर लिखा. What is triple junction? Also identify its type. So triple junction is the meeting point of 3 plate boundary. चलो, comment is introduction with definition is satisfactory. With various structural relief like mid-oceanic trenches, ridges. अब ये mid-oceanic trench अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन हो जाता है. यहाँ पर आप एग्जामिनर को अपना lack of confidence in writing शो कर रहे हो. Then the answer proceeds. Globally meeting point of Indo-Austral plate, African plate, Antarctic plate and minor plate as Socotia forms the example. It is not actually showing, the map has been drawn fine, but क्या ये वो purpose solve कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ट्रिपल जंक्शन को डिफाइन आउट करना है. तो आंसर आप खुद देख रहे हो, इज नॉट इवॉल्विंग आउट ऑफ द क्वालिटी. इन दीज ट्रिपल जंक्शन देयर आर हॉटस्पॉट वोल्केनो चेन. मतलब यू आर गोइंग वेरी जनरल, यू आर गोइंग सुपरफिशियल. I have commented tectonic activity depending on nature of plate boundary. ये तो आपने बहुत general सा expression लिख दिया. And then you are repeating, and in comparison hotspot volcano, chain of volcano etc. are formed at this point. So it is not done. Second part of the answer बिल्कुल छोड़ दिया. यहाँ पर भी आप देख रहे हो 10 में से 2 मार्क्स मिले. तो ये भी आप अच्छा आंसर नहीं कहोगे. Comparatively decent answer, तीसरा पेज आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखोगे. ओवरऑल आप खुद देखें, प्रेजेंटेशन इज क्वाइट एक्सीलेंट इन दिस पर्टिकुलर आंसर शीट कंपेयर टू द अदर्स. लेकिन सोच कर देखो, ये आपकी एज नहीं है और आपका फोकस भी नहीं है टू इम्प्रूव ऑन योर हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग को लेजिबल होना चाहिए. पिछले 2 पेजेस में हैंड राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी बट लेजिबल है. यहाँ पर प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है. अब जरा कंटेंट पर देखते हैं. According to plate tectonic theory, triple junction is the place where 3 plate tectonic boundaries meet. Perfect. At any boundary between 2 plates, there are either spreading apart and pushing up together. अब ये बताओ, 2 प्लेट बाउंड्री की बात करने की तो यहाँ जरूरत ही नहीं थी. ये एक अननेसेसरी इनकॉर्पोरेशन हो गया. Types of triple junction, mid-oceanic ridges.
They compose of two chains of mountains divided by large depressions in between. क्या ये depressions होता है? यहाँ पर magma ejection है, and magma ejection tends to create ridge. अटलांटिक रिज को आप ट्रिपल जंक्शन का एग्जाम्पल तो नहीं बता सकते हो गया ना गड़बड़। मतलब आपने ओवरऑल लुक में तो प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा दिया पर कर दिया गड़बड़। सिमिलरली ट्रेंचेस की जब आप बात करते हो, जैसे मरियाना ट्रेंच या पेरूचिली ट्रेंच का एग्जांपल दिया है स्टूडेंट ने, यहाँ पर भी हमने कमेंट कर रखा है पैसिफिक, कैरोलिन, नाउजिका एंड साउथ अमेरिका, ये ट्रिपल जंक्शन के केसेस तो हुए ही नहीं। तो यहाँ पर आप गलत चले गए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव बिगन करेक्ट। इसके बाद जो आपने टाइप, ये जो आपने आंसर में देख रहे हो, ये जो टुवर्ड्स एंड आ गया, वो कहीं पर ट्रिपल जंक्शन को थोड़ा सा जज कर रहा है। दैट इज द रीजन द एस्पिरेंट हैज गॉट 5 on 10. So comment is, to begin with, your answer is mixed up with plate boundary types. We need to work on this. अब जरा ध्यान से देखो आंसर जो हमने प्रोवाइड किया। Our answer begins with the introduction. I do provide my handwritten answer. So this is my handwritten. Almost all plate boundaries majorly includes junction between two plates. However, there are localities, locations where 3 plates develop junction called triple junction. ये ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसको आपने डेफिनेशन से शुरू करना है। आई थिंक इट मेक सेंस। तो डेफिनेशन आ गया, प्लेट बाउंड्री के बारे में बात किया। आप इसी को एक जो हम हमेशा कहते हैं ब्रिज क्रिएट कर रहे हो इस इंट्रोडक्शन का, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट, प्रिसाइजली डोमिनेंट क्योंकि ये सारी चीजों को इनकलकेट करता है। देखते हैं, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रिपल जंक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ 3 median rift as in southern end of the Red Sea, where the splitting of Arabian plate away from African plate is observed. जैसे ही आप ये डोमिनेंट एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हो, अब आप इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। 1 arm of the junction is Red Sea, 2nd is Gulf of Aden, and 3rd is along East African Rift Valley. And this is what we call a far triangle. ये डायग्राम बनाकर एग्जामिनर को दिखा दिया। आप इसको इंपॉर्टेंट आर्म क्यों बोलते हो? बिकॉज यहाँ थर्ड पॉइंट आया, इफ दिस थर्ड आर्म विल कंटिन्यू टू बी एक्टिव इट कैन बिकम अ कंप्लीट स्प्रेडिंग ओशन फ्लोर। हम सब जानते हैं कि रेड सी इज प्रोजेक्टेड टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेजेड ओशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। If not, now comes an important thing, then it will develop the failed arm which is often occupied by river basin. जो हमने कहा था ओलोकोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ट्रिपल जंक्शन का बात करते हो। जैसे ही आपने ये अफार ट्राइंगल एज अ डोमिनेंट एग्जाम्पल विद पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग फेल्ड आर्म एंड एक्सटेंशन कर दिया, यहाँ आपने एग्जाम्पल साइट करना शुरू कर दिया, मिसिसिपी वैली एज एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड आर्म। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिपल जंक्शन सजेस्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ मैंटल प्ल्यूम कैन ऑल्सो बी सीन विद दिस। तो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज का डायमेंशन आ गया। एंड देन वी प्रोसीड टू ऐड ऑन द ट्रिपल जंक्शन टाइप्स। सो ट्रिपल जंक्शन के आप बहुत सारे टाइप्स ले सकते हैं क्योंकि नाम बड़े एक्सटेंसिव होते हैं। तो जैसे हमेशा एडवाइस करते हैं, कोई एक ऐसा टर्म जिसमें आपको बार बार लिखना है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ पे एग्जामिनर को एक लिंक दे दें। जैसे हमने बताया, बिटवीन 3 ओशन रिजेस आर नोन एज रिज 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 RRR. Similar notation can be used to identify triple junction involving trench T, transform fault F. For example, ridge fault junction will be called RRT. Considering all geometric possibilities, 7 types of triple junction exist. आपने जैसे ही ये बात कर दी, आपने सेकंड एग्जाम्पल को प्रूव कर दिया और आंसर हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे दो। रिज 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 इज अ फार ट्राइंगल, हमने ऑलरेडी बता दिया डोमिनेंट है क्योंकि इसमें एक फेल्ड आर्म की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। सो वी हैव क्रिएटेड दैट एज आर केस स्टडी। तो उसके बाद TTT दैट इज कॉल्ड ट्रेंच ट्रेंच ट्रेंच, सेंट्रल जापान। TTF दैट इज ट्रेंच ट्रेंच एंड फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. It's off the coast of Chile because here you are taking a preference of Colas Ridge, the Central American Plate, Nazca and Pacific. TTR that will be trenches and ridge.
इट इज ऑफ द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यहीं पर ही आप कोलाज रिज के साथ जुआन दी फुका प्लेट को एसोसिएट कर सकते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम राइट हेयर। जगह बची थी तो हमने इस तरह के 3 एग्जाम्पल्स बता दिए। अब आप बताओ कि इस तरह के आंसर में जहां आपने एग्जामिनर को फुल प्रूफ डोमेन दे दिया, विल यू नॉट बी इन द पोजिशन ऑफ गेटिंग 8.5 और 9 मार्क्स अपॉन 10? ये आपको फोकस करना है। सो दिस गोज एज फर्स्ट। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। व्हाट आर कॉजेज ऑफ सुनामी? अब ये भी 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो 150 वर्ड्स के बारे में लिखना है आपको। 2 पेजेस हैं आपके पास ऑलमोस्ट। व्हाट आर कॉजेज ऑफ सुनामी? क्या आप डायरेक्टली शुरू हो जाओगे कॉजेज से? आपको डेफिनेशन तो देना ही पड़ेगा। यहां पर डेफिनेशन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। आप देखो इस शीट में क्या लग रहा है, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर ऑन द कोस्टल एरिया क्रिएट्स फ्लडिंग। I don't take that. Major cause of tsunami is earthquake. When earthquake occur, it creates propagation of railing wave, which creates vertical ground shift of the location. Water piles up in order to get back. It creates tsunami. कुछ भी क्लैरिटी में नहीं है। ये आपका डायग्राम देखो, हमने मार्क करा हुआ है, इट्स नॉट क्लियर। आपको क्या लिखना चाहिए? मेन कॉज ऑफ सुनामी डेफिनेशन तो पहले ही आपका मिसिंग हो गया। ग्राउंड शिफ्ट क्या लिखना चाहिए थोड़ी देर में बता रहे हैं। यहां जो हमने कमेंट दिया हुआ है, ग्राउंड शिफ्ट ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड सबमरीन क्वेक कैन रिजल्ट इनटू कंप्लीट डिस्टर्बेंस ऑफ कंप्लीट डिस्टर्ब्ड वाटर मास। अब बनाना डेफिनेशन, आप टाइप को आप स्पेसिफाई कर रहे हो। अगर आप ऐसे क्लैरिटी के साथ नहीं लिखेंगे तो आप मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये डायग्राम को देखो, पाइलिंग अप, नॉट डन एट ऑल। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अदर कॉजेज आर सबमरीन वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड एंड ह्यूमन इंड्यूस। comment that I have given is causes are correct, details to be improved, language to be made more expressive, diagram to be made more clear। सारे causes ऐड कर दिए थे तो 4 में से 10 दे दिया। अब इसी 10 में से 4 दे दिया। ओके, अब इसी में आगे बढ़े। थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुकिंग शीट दिखाई दे रही है, देखो जरा। सुनामी आर दी सबमरीन सी वेव्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू वाटर पाइल्ड। अब गलत हो गया ना, सुनामी आर दी सी वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ द कंप्लीट वाटर मास। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। दे आर कॉल्ड किल्ड सुनामी, किलर। They are called killer waves. They are called harbor waves. ये टर्म जो है ये आ रहा है जापान से, and you can take up the variations of its definition or meaning. डेफिनेशन में ही गड़बड़ हो रही है, प्रेजेंटेशन राइटिंग काफी सुंदर है। कॉज में आया तो पाइलिंग अप ऑफ वाटर, वही वाली बात बार बार हो रही है। लेकिन आपको समझना है ना कि मेन कॉज तो सबमरीन वोल्केन अर्थक्वेक है, फिर वोल्केनिज्म, चलो सही हो गया। उसके आगे बढ़े तो हमें मिला एंथ्रोपोजेनिक एंड सबमरीन लैंडस्लाइड। कॉजेज आर करेक्टली लिस्टेड, सो यहां पर भी आपको दिखिया 4/10 में से। अब जरा हम अपने आंसर को दिखाएं। ये वाला गुड शीट है, चलो ये भी दिखा देते हैं आपको। इस शीट में आप देखो, सुनामी इज नथिंग बट सेस्मिक सी वेव क्रिएटेड ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड सबमरीन क्वेक due to railing wave and vertical ground shift. Diagram propagation, which is including open oceanic propagation and otherwise. Causes of tsunami is vertical ground shift, submarine volcanism, submarine landslide, human induced. And conclusion, hence there is no, these are not only submarine seismic wave that generate tsunami, there are other factors which is developing. It is 6 out of 10. Good. देखें जरा यह, the phenomena called tsunami is a series of large waves of extremely long wavelength and period, usually generated by a violent impulsive undersea disturbance or activity. ये हुआ मेरा introduction, which is a very clear example of definition. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। when a sudden displacement of large volume of water occurs, ये मेरा ब्रिज लाइन है, हम बार बार आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको लिखना है। और if the sea floor is suddenly raised or dropped by earthquake, big tsunami waves can be formed. इसी के कंटिन्यूटी में these waves often look like walls of water that create strong breakers and surfing. जरूरी नहीं है यहाँ ब्रेकर्स और सर्फिंग का डेफिनेशन देना।
Then you begin with your causes and you have labeled earthquake and tsunami. As more than 80% of world tsunami occurs along Pacific subduction zone, relation between earthquake and tsunami is strongest by default. मेरा main cause of tsunami तो earthquake ही होता है. The seismicity along subduction region is caused by tilt, offset or displacement of large areas of ocean floor. जब sudden displacement over large area of the ocean floor disturbs the surface water and the entire water mass, it tends to create tsunami. सुनामी का प्रोपोगेशन बहुत आराम से डायग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं. ओपन ओशन मूवमेंट इज लॉन्ग वेव और नियर शोर लाइन जो आपका है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज विद क्रेस्टिंग एंड इनंडेशन, है ना. अब आप खुद से देखो, हमने एग्जामिनर को पहला सबसे डोमिनेटिंग पॉइंट बता दिया, अब उसके बाद आप अलग अलग करते जाओ. स्लम्स एंड सुनामी. Less frequent tsunami waves can be generated from displacement of water resulting from rock ice fall, landslide और slump. यही हुआ था ना आपका मांडा आर्च इंडोनेशिया में, क्रैकाटोआ लैंडस्लाइड की वजह से सुनामी आया था, जो न्यू ईयर ईव के बड़े सारे सोशल मीडिया में आपने इमेजेस देखे. Such events may cause impulsively from the instability or sudden failure of submarine slope. ठीक है, हमने एग्जाम्पल साइट करा है क्रैकाटोआ क्रेटर 2018 का जो सुंडा स्ट्रेट सुनामी है, विच क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मीटर्स के हाइट का वेव. उसके बाद आप ऐड कर दो सी वोल्केनिज्म एंड सुनामी. अ वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन कैन ऑल्सो डू इट. अब इस डायग्राम में देखो हमने क्या ट्रिक डाला. हमने इस डायग्राम में दोनों चीजें बता दी. वोल्केनो का कोलैप्स्ड वोल्केनो भी बता दिया एंड फास्ट मूविंग डेब्री एवलांच भी बता दिया. तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बोथ स्लम्प एज वेल एज पायरोक्लास्ट. इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक डायग्राम बनाकर एग्जामिनर को बता दिया कि भाई सुनामी जो है इन दोनों केसेस से हो सकती है. And then we can take up the reference of it is largely related to fast moving debris avalanches moving towards sea as submarine quake can cause submarine volcanism. Finally, you can add anthropogenic causes can also lead to generation of tsunami. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा. अगर आप आंसर नहीं लिखोगे इन द डिजायर्ड फॉर्म तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे. आपको जज करना है कि क्यों मुझे मार्क्स नहीं मिल पाए और क्यों मेरे कॉम्पिटिटर को या पीयर पर्सन को मार्क्स मिल पाए. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू as we begin with our test series program. Bye bye from my side.